پچھلے خطبہ جمعہ میں ماہ شعبان سے متعلق ایک حدیث پیش کی گئی تھی، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں دوسرے مہینوں میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے، نہیں پایا گیا ہے، تو آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے؟ اس سے مراد نفلی روزے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس فیہ بین رجب و رمضان وہذا شہر یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یعنی میں جو اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتا ہوں اور دوسرے مہینوں میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتا، اس کی دو حکمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں پڑتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس مہینے میں غافل رہتے ہیں اور عبادت و عمل پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، چونکہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فرض روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو لوگ رجب کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں تو دین، عمل اور عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے جو بیچ میں مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، لوگ اس کے بارے میں اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو ایک حکمت تو یہ بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری حکمت یہ بتائی کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں، اٹھائے جائیں، تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ محترم حضرات، اس حدیث سے ہمیں تین اہم اور بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شعبان کا مہینہ نفلی روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ایمان کا دعویٰ، محبت رسول کا دعویٰ، اتباع رسول کا دعویٰ کب صحیح ثابت ہوگا؟ جب ہم واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور نبی کی سنت ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو شعبان کے روزے ہیں، جو کہ رمضان سے پہلے کے روزے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں ہوتی ہیں۔ نمازوں میں یہی معاملہ ہے کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں،
इन फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले भी कुछ सुन्नतें होती हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद भी सुन्नतें होती हैं। और सुन्नतों का फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ में जो कमी कोताही रह जाती है वो पूरी हो जाती है। जैसा कि क़यामत के दिन जब बंदे का हिसाब लिया जाएगा तो अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि देखो मेरे इस बंदे के लिए क्या कोई नफिल इबादत है, कोई नफिल अमल है, कोई नफिल नमाज है। तो उसके ज़रिए से फ़र्ज़ की कमी और कोताही पूरी कर दी जाएगी। तो नमाज़ों की तरह ही शाबान के और रमज़ान के रोज़ों की मिसाल है और शव्वाल के रोज़ों की मिसाल है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उससे पहले कुछ नफली और मसनून रोज़े हैं शाबान के रोज़े, और रमज़ान के बाद भी रोज़े हैं मसनून नफली रोज़े शव्वाल के रोज़े। तो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों से पहले भी मसनून रोज़े हुए शाबान के रोज़े, और उसके बाद भी मसनून रोज़े हुए शव्वाल के रोज़े। ठीक फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह से कि उससे पहले भी सुन्नतें और बाद में भी सुन्नतें। तो जिस तरह से हम फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले और बाद में सुन्नतों का अहतमाम करते हैं, उसी तरीके से हमें चाहिए कि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों से पहले और बाद में सुन्नतों का अहतमाम करें। रमज़ान से पहले शाबान में नफली रोज़े रखें और फिर रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखें। शाबान के महीने में सलफ़ सालिहीन इबादात का और नेकियों का बहुत ज़्यादा अहतमाम करते थे। ये शाबान का महीना हमारे सलफ़ सालिहीन की नज़र में एक मुक़द्दमा और तमहीद का महीना होता था। रमज़ान का इस्तक़बाल करते थे शाबान के महीने में नेकियां कमा कर। शाबान के महीने से तैयारी शुरू कर देते थे रमज़ान की। चुनांचे शाबान के महीने में कुरान की तिलावत, सदक़ा और खैरात और नफली रोज़ों का अहतमाम खूब किया करते थे, ताकि इंसान पहले से तैयार रहे रमज़ान के लिए, पहले से आदत बन जाए, तरबियत उसकी हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए और रमज़ान का महीना बोझ महसूस ना हो। तो लिहाजा हमें भी सलफ़ सालिहीन के रास्ते पर चलते हुए इसका अहतमाम करना चाहिए। दूसरी बात ये मालूम होती है इस हदीस से कि गफलत के अय्याम में, गफलत के ज़माने में, गफलत के औक़ात में, जिनमें आम तौर से लोग दीन से गाफिल होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, अल्लाह की इबादत से गाफिल होते हैं, नेकी के कामों से गाफिल होते हैं, इन औक़ात में, इन अय्याम में, इस तरह के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा फ़राइज़ व वाजिबात और सुनन और नवाफिल का अहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम करना चाहिए और अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालना चाहिए और अल्लाह की इबादत में मशगूल होना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलत है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शाबान में रोज़ों की कसरत की हिकमत पूछी गई तो आपने क्या फरमाया कि शाबान के महीने में लोग गाफिल होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखूँ। मालूम ये हुआ कि गफलत के ज़माने में लोगों को चाहिए कि ज़्यादा अहतमाम करें अल्लाह की इबादत का। आज के इस ज़माने में, इस दौर में लोग दीन से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के ज़िक्र से बहुत ज़्यादा गाफिल हैं। इस तरह से लोग दुनियावी कामों में मशगूल हो गए हैं कि उन्हें अल्लाह के ज़िक्र की, अल्लाह की इबादत की कोई फ़िक्र ही नहीं है। और बहुत सारे लोग तो बहाने बनाते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं बचता है। तो इस ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा गफलत में मुब्तला हैं, दीन से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के ज़िक्र से गफलत के शिकार हैं। तो इस तरह के दौर और ज़माने में कोई शख्स अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करे, अल्लाह के दीन पर अमल करे, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकाले और अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह को याद रखे, तो ये बहुत फजीलत वाली बात है उसके लिए और इस पर उसे बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। और इसलिए आप जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में। तहज्जुद की नमाज किस वक्त अदा होती है? रात में। रात में आम तौर से लोग गाफिल होते
होते हैं, सोए रहते हैं। तो उस वक्त अगर कोई शख्स उठता है रात में, सोने के बाद उठता है रात के आखिरी पहर में और अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है या जितनी तौफीक हो 2-2 रकत करके नमाज़ पढ़ता है और उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करता है, ज़िक्र व अज़कार करता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। उस वक्त दुआएँ कबूल होती हैं। और तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करना ये औलिया, मुत्तक़ीन, परहेज़गार, नेक, सालिहीन बंदों की अलामत है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। क्यों तहज्जुद की नमाज की इतनी ज़्यादा फजीलत है? इसलिए कि वो गफलत का वक्त है। उस वक्त लोग गाफिल होते हैं, सोए रहते हैं, मस्त रहते हैं, नींद में, ख्वाब में रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, मुत्तकी परहेज़गार बंदे होते हैं, लोगों की इस गफलत के वक्त फ़ायदा उठाते हैं और अल्लाह को याद करते हैं इखलास के साथ। कोई देखने वाला नहीं होता है, खुलूस के साथ अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की इबादत को अंजाम देते हैं। कोई रियाकारी नहीं होती, दिखावा नहीं होता। ये मुखलिस होने की दलील है। इसलिए हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। और रात में जब लोग सोए हुए होते हैं, नमाज पढ़ो तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो गफलत का जो वक्त है जिसमें लोग गाफिल होते हैं, वो वक्त अल्लाह ताला को बहुत पसंद है इस बात के लिए कि अल्लाह के नेक बंदे उस वक्त को अल्लाह की इबादत में गुजारें। तो उसी तरह से ये शाबान का महीना है, इसमें लोग गफलत के शिकार होते हैं। तो इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि रोज़े की हालत में रहूँ। मुहतरम हज़रात, आज के ज़माने में लोग ज़्यादा गाफिल हैं बनिस्बत गुज़रे हुए ज़माने के। इतने ज़्यादा गाफिल हैं कि लोग अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने को आमादा नहीं हैं और बहाने बनाते हैं कि वक्त नहीं है कि दीन की तालीम हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। जो बुनियादी इस्लामी तालीमात हैं उनसे भी वाकिफ़ नहीं हैं। क्या अक़ीदा होना चाहिए, कैसा अमल होना चाहिए, इबादत का तरीक़ा क्या है, तौहीद किसे कहते हैं, शिर्क क्या है, सुन्नत क्या क्या है, बिदअत क्या क्या है, नेकी क्या है, गुनाह क्या है, इन चीज़ों की मार्फत नहीं है। किस तरह से हमें इस्लामी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसके लिए वक्त भी नहीं निकालते हैं। मदारिस में दीन की तालीम हासिल करने वाले तलबा कितने हैं और दूसरी तरफ देखें स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा की तादाद कितनी ज़्यादा है। और ऐसे भी बच्चे हैं, नौजवान हैं जो किसी भी दीनी या दुनियावी तालीम किसी से भी आशना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा गाफिल हैं दीन की तालीम से, दीन के बारे में इल्म हासिल करना, दीन पर अमल करना, इसी तरह से दीन की दावत देना, इन तमाम चीज़ों से लोग गफलत में मुब्तला हैं, गफलत के शिकार हैं। ज़रूरत इस बात की है कि गफलत की चादर को उतार फेंकी जाए और अल्लाह ने जो दीन भेजा है, जो शरीयत नाजिल की है, जो दीन तौहीद है, जो दीन मुहम्मदी है, उसका इल्म हासिल किया जाए, उस पर अमल किया जाए और उसकी दावत दी जाए। अफसोस की बात है कि लोगों को बार बार तंबीह की जाती है, तज़कीर की जाती है, याद दहानी कराई जाती है, लोगों को नसीहत की जाती है, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं है। दीन का इल्म हासिल करने पर आमादा नहीं, दीन पर अमल करने पर आमादा नहीं, दीन की दावत में हिस्सा लेने पर आमादा नहीं, नसीहत और इबरत पकड़ने पर आमादा नहीं। यकीनन ये गफलत है और जो लोग ऐसा करते हैं वो गाफिल हैं, वो लोग फासिक हैं, वो लोग बेदीन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया है कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। सूरह आराफ की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के बारे में बयान किया कि जहन्नमी कौन लोग होंगे, जहन्नम में जाने वाले कौन लोग हैं। तो फरमाया कि वो लोग हैं कि जिनके पास दिल तो थे लेकिन समझते नहीं थे। दिल दिमाग रखने के बावजूद वो दीन की बातों को समझने को तैयार नहीं थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अक्ल दी थी, ज़िहानत दी थी, दिमाग दिया था, दिल दिया था दीन को समझने के लिए, मकसद ज़िंदगी को समझने के लिए
اور اللہ کی عبادت کا طریقہ جاننے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے دل اور دماغ کا استعمال، اپنے عقل کا استعمال دین کو سمجھنے کے لیے نہیں کیا، دنیاوی چیزوں میں مست رہے۔ انہوں نے اپنے دماغ کا، اپنے دل کا اور اپنے عقل کا استعمال توحید اور شرک میں فرق جاننے کے لیے نہیں کیا، سنت اور بدعت میں فرق جاننے کے لیے نہیں کیا، نیکی اور بدی میں فرق اور تمیز جاننے کے لیے نہیں کیا، دین کا علم انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا، ان کے دین کی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں تھا، انہیں کوئی تحقیق ہی انہوں نے نہیں کی۔ جیسے باپ دادا سے دین ملا، آس پاس کے لوگوں سے دین اور شریعت کی بات مل گئی، اس پر مطمئن ہو گئے، یہ جاننے کے باوجود کہ بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، تو صحیح دین کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو جاننے کی فکر نہیں ہوئی، جو پایا اس پر مطمئن ہو گئے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آج امت کا یہی حال ہے، آج امت کے افراد جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، وہاں جو دین انہیں نظر آیا اس کو اختیار کر لیا، اور اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ صحیح دین کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے والا دل نہیں ہے، دل غفلت کا شکار ہے، دل بے دینی کا شکار ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، دین کی محبت نہیں ہے، دل ہیں لیکن غافل ہے۔ آگے فرمایا اور ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے حوادث ہوتے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، کتنی موتیں ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، کتنے زیادہ لوگ اتار چڑھاؤ کے شکار ہیں، عروج اور زوال کے شکار ہیں۔ یہ سب عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے، دن رات ہم دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ حادثات ہوتے ہوئے، لیکن ہماری نگاہیں، ہماری نظر ایسی نہیں کہ عبرت حاصل کر سکے، نصیحت حاصل کر سکے کہ ایسا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہ ہم تیاری کریں آخرت کے لیے، اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، لیکن نہیں، آنکھیں ہیں لیکن عبرت کی نگاہیں نہیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں لیکن عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سمجھ کر، ایک خبر سمجھ کر ہم اس کو دیکھتے سنتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، کان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان دیے حق کی بات کو سننے کے لیے، لیکن حق کی بات کو سنتے نہیں ہیں، مطلب مانتے نہیں ہیں، غور سے سنتے نہیں ہیں، اور سن بھی لیا تو مانتے نہیں ہیں حق کی بات، باطل کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، توحید کی بات سنتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں، سنت کی باتیں سنتے ہیں عمل کرنے کو تیار نہیں، حق اور باطل میں فرق سمجھایا جاتا ہے لیکن سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، جانور کی طرح سے ہیں، حیوان کی طرح سے، اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ حیوانوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں، غفلت میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غفلت بہت بری بیماری ہے، لہذا غفلت کو دور کرنا چاہیے، اور دل میں اگر غفلت ہے، عملی اعتبار سے اگر ہم غافل ہیں، کسی بھی طرح سے ہم دین سے، عبادت سے، عمل سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہمیں بھی چاہیے کہ اس دور میں، اس زمانے میں لوگ غافل ہیں تو ہم دین کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی دعوت میں حصہ لیں۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے غفلت سے منع کیا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال، دولت، تجارت اور جو تمہاری نوکریاں ہیں اور تمہاری بزنسیں ہیں، یہ سب تمہیں اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے دین سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی وجہ سے دین سے غافل ہو جاتے ہیں، آخرت سے بے فکر ہو جاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کے دین سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، اے ایمان والو تم ان کی طرح سے مت ہو جانا، کافروں کی طرح سے، منافقوں کی طرح سے، حق کو جاننے کے باوجود غافل ہیں، علم و عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے، اے ایمان والو تم ان کی طرح سے مت ہو جانا، جو لوگ ایسے ہیں وہ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون،
मुनाफिकों के बारे में फरमाया कि उन्होंने अल्लाह के दीन को भुला दिया, अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह के से गाफिल हो गए, तो अल्लाह ने भी उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया, और यही लोग फासिक हैं। तो मोहतरम हज़रात, गफलत बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, लोगों को कसरत की चाहत ने माल, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, हुस्न, जमाल और वगैरह वगैरह इन तमाम चीज़ों की ज़्यादती ने गाफिल कर दिया है, यहाँ तक वो कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं, मौत आ जाती है और वो अपनी फ़िक्र नहीं करते आखिरत की, दीन की। तो मोहतरम हज़रात, हमें गफलत से बाहर निकलना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो इस हदीस से मालूम होती है वो ये है कि शाबान के महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं, अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किए जाते हैं, अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं शाबान के महीने में। और दूसरी हदीसों में ये भी है कि हर जुमरात के दिन और हर पीर के दिन भी बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं, इसलिए हर पीर को और जुमरात को रोज़ा रखना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसी तरीके से दूसरी हदीस से ये भी मालूम होता है कि रोज़ाना बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं, फजर के वक्त और असर के वक्त, इन दोनों वक्तों में अल्लाह के यहाँ बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं, इसलिए फजर और असर का खूब एहतमाम करना चाहिए। तो ये अमाल की पेशी के दिन हैं। सालाना शाबान के महीने में अमाल पेश किए जाते हैं, हफ्तावारी पीर और जुमरात को पेश किए जाते हैं, और रोज़ाना के हिसाब से असर और फजर में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। लिहाजा जब बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं तो हमें चाहिए कि उन औकात में हम बुराइयों से दूर रहें, गुनाहों से दूर रहें, नेकियों में रहें, ताकि अल्लाह के यहाँ हमारे अमाल पेश किए जाए तो वो नेकी के अमाल हों। अगर नेकी नहीं करते हैं तो कम से कम गुनाहों से बचे रहें, बुराइयों से बचे रहें, कि ऐसा ना हो कि उस वक्त बंदों के अमाल जब पेश किए जाते हैं तो आपके गुनाह पेश किए जाएं, आपकी बुराइयां पेश किए जाएं। बहुत बड़ी तंबीह है इसमें हमारे लिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और गफलत से अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नेक अमाल के करने और गुनाह के जो अमाल हैं उनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, और इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला हमें सआदत की ज़िंदगी से नवाज़े। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।